مدینے میں جو دے گا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں ارے تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی جو بہنا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ارے کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر کتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر ارے اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اور بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم ارے سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اور دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے ارے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا ارے ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح نکلتی ہو کوئی روح بدن سے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا
التحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفينا قال الله تبارك في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بسم الله الرحمن الرحيم. باول بلن علیہ صلوات پڑھو اذان محترم قرآن مجید کی منظومان کا کلمہ اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات اپنے حبیب سے پکار اے میرے حبیب مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو آپ کی رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا لیکن اگر تمہاری یہی ضد ہے کہ میری رسالت کی اجرت ادا کرو تو وہ یہ ہے کہ میرے قربا کی محبت کرتا ہے نظر محترم اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے دو لفظ استعمال کیا ایک لفظ مودت اور دوسرا لفظ قربا عام طور سے لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو جبکہ اس آیت میں نہ تو محبت کا سوال ہے نہ قرابت داروں کا تذکرہ ہے سوال ہے مودت کا تذکرہ ہے قربا سوال ہے مودت کا تذکرہ ہے قربا پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے قربا سے مودت حضرت محترم جب کہا کہ میرے قربا سے مودت اختیار کرو حضرت محترم تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول نے قربا کی مودت کو اپنی رسالت کی اجرت قرار دیا جبکہ یہ مودت کا سوال نہ رسول نے اپنی جانب سے کیا ہے اور نہ رسول کے نہ اللہ نے اپنی جانب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی جانب سے نہیں کیا رسول اللہ نے اپنی جانب سے نہیں کیا اپنی جانب سے نہیں کیا بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے صراط مستقیم دکھانے میں بڑی محنت کی ہے بڑی مشقت برداشت کی ہے تو لوگ مال و دولت کی گٹھری سر پر رکھ کر در رسالت پر آئے اور در رسالت پر آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھانے میں بڑی محنت کی ہے بڑی مشقت برداشت کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس محنت کی اجرت ادا کریں اللہ کا رسول خاموش اس لیے کہ پروردگار عالم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا رسول اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آئے اللہ کا رسول وحی الہی کا منتظر ہے کہ اتنے میں جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے حبیب اللہ
अल्लाह ने कहा है कि इन मुसलमानों से कह दीजिए जो आपकी रिसालत को इज्जत देना चाहते हैं कि मैं अगर रिसालत कुछ नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी यही जिद है कि मेरी रिसालत की उजरत अदा करो तो वो ये है कि मेरे कुर्बा से मोहब्बत इख्तियार। अज़ान मोहतरम, कहा मेरे कुर्बा से मोहब्बत इख्तियार। अब ये कुर्बा कौन बताए कुर्बा कौन? इसलिए कि तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा किया कि पैगम्बर ने फरमाया मेरे कराबतदारों से मोहब्बत इख्तियार। अगर सारे रिश्तेदारों की बात हो, सारे कराबतदारों की बात हो, तो जैसे जो रशीदा की आयत में लफ्ज इस्तेमाल हुआ था बंजुर रशीदा तकल अकरबीन, हे मेरे हबीब तमाम कराबतदारों को बुलाओ और उन्हें डराओ, तो लफ्ज अकरबीन आना चाहिए, जमा का सेगा इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन यहाँ जमा का सेगा नहीं इस्तेमाल हुआ, यहाँ कुर्बा कहा है। कुर्बा से मोहब्बत इख्तियार। कौन है कुर्बा? अज़ान मोहतरम बस ऐसे समझ लीजिए जैसे एक लफ्ज है कबीर। कबीर के माने बड़ा। इसको अरबी ग्रामर के एतबार से इसमें तब्दील में ले जाएंगे तो हो जाएगा अकबर, यानी सबसे ज्यादा बड़ा। हम अज़ान में क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे ज्यादा बड़ा। और जब इसकी मुअन्नस बनाएंगे तो हो जाएगा कुबरा, यानी सबसे ज्यादा बड़ी। इसी तरह लफ्ज है सगीर। सगीर के माने छोटा, जब इसमें तब्दील में ले जाएंगे हो जाएगा असगर, यानी सबसे ज्यादा छोटा। और जब इसकी मुअन्नस बनाएंगे तो हो जाएगा सुगरा, यानी सबसे ज्यादा छोटी। इसी तरह लफ्ज है करीब। करीब के माना है पास के, नजदीक के। और जब इसमें तब्दील में ले जाएंगे तो हो जाएगा अकरब, यानी सबसे ज्यादा करीब। और जब मुअन्नस बनाएंगे तो हो जाएगा कुर्बा, यानी वो खातून जो सबसे ज्यादा करीब है, वो खातून जो सबसे ज्यादा करीब है। पैगंबर इस्लाम में सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत की बात नहीं की है, मोहब्बत की बात उसकी की है जो उसका ताल्लुक उस खातून से है। सलावत पढ़िए मोहम्मद मोहब्बत की बात उसकी की है जिसका ताल्लुक उस खातून से है। अब वो खातून कौन है, उसका तारुफ कौन कराए, उसे कौन जानवाए कि वो खातून कौन है? तो अज़ान मोहतरम उस खातून का तारुफ खुद परवरदिगार आलम ने करवाया। कब करवाया? जब बदने रिसालत में ज़ौफ़ महसूस हुआ और अल्लाह का रसूल अपनी बेटी के घर आया और आने के बाद कहा बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, मुझे चादर यमानी दे दो। शहजादी ने चादर यमानी दी। पैगंबर चादर यमानी ओढ़ कर लेट रहे। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए और आने के बाद एक फिक्र का मादर गिरामी हम अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। शहजादी ने फरमाया हाँ तुम्हारे नाना चादर के नीचे है, चले जाओ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम चादर के करीब आए, इजाजत ली और दाखिले किसा हो गए। सलावत पढ़िए। कुछ लम्हे न गुजरे थे कि छोटा शहजादा यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए और वही फिक्रा जो भाई ने कहा था उसी को दोहरा दिया। मादर गिरामी हमें अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहे हैं। शहजादी ने फरमाया हाँ तुम्हारे नाना और तुम्हारे भाई चादर के नीचे हैं, चले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चादर के करीब आए, इजाजत ली और दाखिले किसा हो गए। कुछ देर और गुजरी थी तो मौलाए कायनात घर में दाखिल हुए और वही फिक्र जो शहजादों ने दोहराए थे अपने रिश्ते की तब्दीली के साथ दोहरा दिए। बिन्ते रसूल हम अपने इब्ने आम की खुशबू महसूस कर रहे हैं। शहजादी ने फरमाया हाँ तुम्हारे भाई और तुम्हारे बेटे चादर के नीचे हैं, चले जाओ। मौलाए कायनात चादर के करीब आए, इजाजत ली और दाखिले किसा हो गए। अब शहजादी फरमाती जब चारों लोग चादर में आ गए तो मैं आगे बढ़ी और मैंने आगे बढ़ने के बाद कहा ए बाबा अगर इजाजत हो तो मैं भी दाखिले किसा हो जाऊं।
पैगंबर इस्लाम ने इजाजत दी और शहजादी दाखिल किसा हो गई। सलावत पढ़े। जब पंजेतन इस चादर में चले तो इस चादर से नूर साते हुए और ऐसा नूर जिसे देखकर रोज का आने जाने वाला मलक भी पहचान न सका। आंखों को खीरा कर गया, हाथों को जोड़ के कहा, या रब्बे वमन तहतल किसा, मेरे मालिक ये बता दे चादर के नीचे कौन है, मेरे मालिक ये बता दे चादर के नीचे कौन है। मैं कहूँगा ये जिब्रील, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं पहचानते हो, इनमें से किसे नहीं देखा है तुमने? भाई रसूल के पास वही लेके आते थे, अली तुम्हारे उस्ताद हैं, हसनैन का झूला झुलाने आते थे, शहजादी की चक्की चलाने आते थे, किसे नहीं पहचानते हो, किसे नहीं देखा है? जिब्रील जवाब देते नादान, मैंने हर एक को देखा, हर एक को जानता हूँ, लेकिन हर एक को पहचानता हूँ, लेकिन जब भी देखे नूर के अलग अलग हिस्से देखे। आज पंजेतन का नूर जमा हो गया है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कौन है। चलो पढ़िए मोहम्मद। जैसे ही कहा यार तहतल किसा, मेरे मालिक ये बता दे चादर के नीचे कौन है। बस अज़ान मोहतरम इसी मौके पर परवरदिगार आलम ने कुर्बा का तारुफ कराया। जैसे ही कहा या रब्बे वमन तहतल किसा, ए मेरे मालिक ये बता दे चादर के नीचे कौन है, आवाज कुदरत आई, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। चलो पढ़े मोहम्मद। चादर के नीचे मेरी कनीज़ खास फातिमा है, उनके पिदर बुजुर्गवार हैं, उनके शौहर नामदार हैं और उनके बेटे हैं। मरकज़े तारुफ अल्लाह ने शहजादी को बनाया। देखिए तारुफ हम भी कराते हैं, तारुफ का तरीका क्या होता है? तारुफ या तो घर के बुजुर्ग के जरिए कराया जाता है या घर की मशहूर व मारूफ हस्ती के जरिए कराया जाता है। अगर अल्लाह को घर के बुजुर्ग के जरिए तारुफ कराना था तो रसूल से ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं था। अगर अल्लाह को मशहूर मारूफ हस्ती के जरिए तारुफ कराना था तब भी रसूल से ज्यादा मशहूर मारूफ हस्ती नहीं थी। अल्लाह को हर एतबार से रसूल के जरिए तारुफ कराना चाहिए था। ए मेरे मालिक, जब तुझे तारुफ कराना था तो अपने हबीब के जरिए कराता। आवाज कुदरत आएगी, नादान आज तारुफ रिसालत का नहीं होना है, आज तारुफ नबुव्वत का नहीं होना है, आज तारुफ होना है कुर्बा का। तो कुर्बा में उस दाते गिरामी को मैं मरकज़े तारुफ बनाऊंगा जिसका रिश्ता हर एतबार से बराबर का हो। सलावत पर मोहम्मद। कौन है चादर के नीचे? मेरी कलीज़ खास फातिमा, उनके पितर बुजुर्गवार, उनके शौहर नामदार और उनके बेटे। अच्छा मोहतरम, चादर में बेटे कितने हैं? चादर में बेटे हैं दो। कुदरत ने सेगा इस्तेमाल किया है जमा का, सेगा इस्तेमाल किया है जमा का। बेटे हैं दो। देखिए हमारे यहाँ उर्दू में एक से ज्यादा जमा होता है, उर्दू में एक से ज्यादा जमा होता है, लेकिन अरबी में जमा के लिए कम से कम, अरबी में एक से ज्यादा दो तस्निया कहलाता है, जमा के लिए कम से कम 3 अदद का होना जरूरी। जमा के लिए कम से कम 3 अदद का होना जरूरी। बेटे हैं दो, लेकिन कुदरत ने सेगा इस्तेमाल किया जमा का। ए मेरे मालिक, जब चादर में 2 बेटे थे तो तस्निया का सेगा इस्तेमाल होना चाहिए था, जमा का सेगा इस्तेमाल क्यों हुआ? आवाज़े कुदरत आएगी, नादान अभी कुछ देर के बाद मुझे आए तथीर का तोहफा भेजना है। अगर तस्निया का सेगा इस्तेमाल करता तो तहारत इमाम हुसैन पे आके रुक जाती, तहारत इमाम हुसैन पे आके रुक जाती। लिहाजा मैंने जमा का सेगा इस्तेमाल करके बताया। देखो आए तथीर के मिस्दाक सिर्फ पंजेतन नहीं है, बल्कि फातिमा के जितने बेटे हैं सब आए तथीर के मिस्दाक हैं। सलाम पढ़िए मोहम्मद। चादर के नीचे मेरी कनीज़ खास फातिमा है, उनके पिदर बुजुर्गवार हैं, उनके शौहर नामदार। बस जैसे ही जिब्रील ने सुना कि चादर में पंजेतन है, पंजेतन की मोहब्बत ने जोश मारा।
जिब्रील का सीना तंग हुआ, हाथों को जोड़ा, माबूद अगर इजाजत हो तो मैं भी दाखिले के साथ हो जाऊं। आवाज कुदरत आई, हाँ जिब्रील जाओ, लेकिन मेरे हबीब से इजाजत ले ले। जिब्रील चले, अभी चंद कदम चले थे कि अल्लाह ने रोका, जिब्रील इससे पहले जब भी तुम मेरे हबीब के पास गए तो कोई ना कोई नया तोहफा लेके गए, आज क्या खाली जाओ? जिब्रील ने हाथों को जोड़ा, मेरे मालिक क्या तोहफा देना चाहता है, दे दे तोहफा। आवाज कुदरत आई, नादान जिब्रील इतना हल्का तोहफा थोड़ी है जो आसानी से दे दे। जिब्रील ने हाथों को जोड़ दिया, मेरे मालिक फिर कैसे देगा? आवाज कुदरत आई, ए लमू या मलाइकती व सुक्काना समावाती, ए मलाइका, ए आसमान के रहने वालों सुनो। माबूद क्या सुनाना चाहता है, क्या सुनाना चाहता है? अज़ान मोहतरम, देखिए मलक हमारी तरह खाली तो बैठा नहीं कि मजलिस का ऐलान हुआ, हम आ गए फिर चले गए। मलक की शान ये है कि जो जिस इबादत में मशगूल है वो उस इबादत में मशगूल रहेगा। जो सजदे में है वो क़यामत तक सजदे में रहेगा, जो रुकू में है वो क़यामत तक रुकू में रहेगा, जो क़याम में है वो क़यामत तक क़याम में रहेगा, जो कूद में है वो क़यामत तक कूद में रहेगा, जो तस्बीह पढ़ रहा है वो क़यामत तक तस्बीह पढ़ता रहेगा, जो तक़दीस कर रहा है वो क़यामत तक तक़दीस करता रहेगा, जो तहलील कर रहा है वो क़यामत तक तहलील करता रहेगा। यानी जो मलक जिस इबादत में मशगूल है क़यामत तक उसी इबादत में मशगूल है। तो मलाइका मशगूल इबादत है, मलाइका इबादत में मसरूफ है। आवाज कुदरत आई, ए मलाइका सुनो, ए आसमान के रहने वालों सुनो, जो रुकू में था उसने रुकू छोड़ा, जो क़याम में था उसने क़याम छोड़ा, जो सजदे में था उसने सजदा छोड़ा, जो तस्बीह पढ़ रहा था उसने तस्बीह छोड़ी, जो तक़दीस कर रहा था उसने तस्बीह छोड़ी। सारे मलाइका जमा होकर बारगाह इलाही में आ गए। ये मेरे मालिक क्या सुनाना चाहता है, ये मेरे मालिक क्या बताना चाहता है? जब सारे मलाइका जमा हो गए तब परवरदिगार आलम ने आले मोहम्मद की शान में एक तवील कसीदा पढ़ना शुरू किया। ए मलाइका सुनो, ये आसमान इनके सदक़े में बनाया, ये जमीन का फर्श इनके सदक़े में बिछाया, ये पहाड़ की बुलंदियां इनके सदक़े में, ये समंदर की गहराइयां इनके सदक़े में, ये चांद और सूरज जैसी नीले इनके सदक़े में लगाई है, ये सितारे जैसे कुंकुमे इनके सदक़े में लगाई है, जो चादर के नीचे है। चलो पढ़िए मोहम्मद। एक तवील कसीदा पढ़ने के बाद कुदरत ने जिब्रील को आए तथीर का तोहफा, जिब्रील ने आए तथीर का तोहफा लिया और चादर के करीब आए। चादर के करीब आने के बाद सबसे पहले इजाजत दी, सबसे पहले इजाजत दी, अल्लाह के रसूल क्या इजाजत है कि मैं पांचवें में छठा हो जाऊं? मैं कहूँगा जिब्रील ये अलग अंदाज से इजाजत क्यों ले रहे? भाई अब तक जो भी चादर में आया उसने अदद का शुमार नहीं किया। पहले के बाद दूसरे ने नहीं कहा कि पहले में दूसरा हो जाऊं, दूसरे के बाद तीसरे ने नहीं कहा कि दूसरे में तीसरा हो जाऊं, तीसरे के बाद चौथे ने नहीं कहा कि तीसरे में चौथा हो जाऊं, चौथे के बाद पांचवें ने नहीं कहा कि चौथे में पांचवा हो जाऊं। ये जिब्रील आदत का शुमार क्यों कर रहे हो? जिब्रील जवाब देंगे, नादान, दुनिया को यही तो बताना चाहता हूं, दुनिया को यही तो समझाना चाहता हूं। चादर में जा जरूर रहा हूं, लेकिन ये और है, मैं और हूं, ये और है, ये आका है, मैं इनके दर का गुलाम हूं, मुझे इनके बराबर ना समझ लेना। चलो पढ़िए मोहम्मद। अब उसने इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद जिब्रील ने क्या काम किया? जो कसीदा अल्लाह ने अर्श पे पढ़ा वो चादर के बाहर खड़े होकर सुना, वो चादर के बाहर खड़े होकर सुना दिया। उसके बाद इजाजत लेके दाखिले किसा हो गए। सलाम पढ़िए। चादर में जाने के बाद आए तथीर का तोहफा पेश कर। मैं कहूंगा जिब्रील ये क्या किया? या तो जहां आया सुनाई दी वही कसीदा सुना दे, या जहां कसीदा सुनाया तो वही आया सुना दे। ये क्या कसीदा बाहर सुनाया, आयत अंदर सुनाई? जिब्रील जवाब देंगे, नादान, जो मैंने बाहर सुनाई दी वो थी फजीलत अहले बैत,
जो बाहर सुनाई दी वो थी फजीलत अहले बैत, जो अंदर सुनाई है वो है हकीकत अहले बैत। फजीलत बाहर सुनाई जाती है, हकीकत अंदर सुनाई जाती है। सलावत पर अज़ान मोहतरम जिब्रील आ गए। अब अज़ान मोहतरम जिब्रील चादर में आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहजादी की चादर, जब आप शहजादी की चादर के बारे में पढ़ेंगे तो मिलेगा इतनी मुख्तसर चादर थी कि शहजादी सर ढकना चाहती थी, पैर खुल जाते थे, पैर ढकना चाहती थी, सर खुल जाते थे। इतनी मुख्तसर चादर। पंजेतन आ गए और पंजेतन के बाद जिब्रील भी आ गया। जिब्रील जानते हैं कितने बड़े, देखिए जिस्मानियत के एतबार से भी बड़े हैं और मंजिलत के एतबार से, मनसब के एतबार से, मनसब के एतबार से सारे मलाइका के सैयद सरदार, मनसब के एतबार से सारे मलाइका के सरदार। और जिस्मानियत के एतबार से जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा एक बार मशरिक में होता था, एक बार मगरिब में होता था। इतना बड़ा जिब्रील इतनी मुख्तसर चादर में आ गए थे। इतना बड़ा जिब्रील इतनी मुख्तसर सी चादर में आ कैसे गया? मैंने कहा ये जिब्रील जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे हो गए आए कैसे? आवाज़ें जिब्रील आएगी नादान। मैं दुनिया को यही तो बताना चाहता हूँ, दुनिया को यही तो समझाना चाहता हूँ कि अगर बुलंदियां चाहते हो, अगर इज्जतें चाहते हो तो इस दर पे छोटे बन के आना, बुलंदियां मिलेंगी। बड़े बन के आओगे जलील और रुस्वा हो जाओगे। सलाम पढ़िए मोहतरम। सवाल अपनी जगह कायम कि इतना बड़ा जिब्रील इतनी मुख्तसर चादर में आया। भाई आज का जमाना नहीं था तो समझ लेते डबल बेड की चादर होगी, कल तो डबल बेड का तस्वुर भी नहीं था कि इतनी मुख्तसर चादर में पंजेतन भी आ गए और इतना बड़ा जिब्रील भी आ गया। अज़ान मोहतरम बात ये है, ये मखलूक है नूरी, अल्लाह ने इसे अपने नूर से खल्क किया। अल्लाह ने इसे अपने नूर से खल्क किया। नूर का कोई जिस्म नहीं होता, नूर का कोई जिस्म नहीं होता। 100 वाट का बल्ब इतना बड़ा और 500 वाट का बल्ब इतना छोटा। नूर का कोई बदन नहीं होता, नूर का कोई जिस्म नहीं होता, नूर का कोई जुस्सा नहीं होता। यही वजह थी अल्लाह ने अपने नूर से खल्क किया था। जब अपने नूर से खल्क किया था तो जब तक ये चादर के बाहर रहे, खल्क किया था अपने नूर से, लेकिन खल्क काहे के लिए किया था? हमारी हिदायत के लिए। जब हमारी हिदायत के लिए खल्क किया, अगर अल्लाह ऐसे ही इन्हें भेज देता तो इस नूर की ताब कौन लाता? भाई इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं था जिसे मूसा जैसा नबी बर्दाश्त न कर सका, तो कौन ताब लाता? कौन हिदायत हासिल करता? लिहाजा अल्लाह ने खल्क किया अपने नूर से। जब हमारे पास भेजा तो पैकर बशरी में भेजा, बशरियत का कवर चढ़ा के भेज दिया। बशरियत का कवर चढ़ा कि उधर जाओ तो बशर बन के जाओ, इधर आओ तो नूर बन के आओ, इधर आओ तो नूर बन के आओ, उधर जाओ तो बशर बन के आओ। तो ये थे मखलूक थी नूरी। जब तक चादर के बाहर रहे बशर रहे, जब चादर के अंदर गए आ गए हकीकत है नूर में तब्दील हो गए और नूर का कोई जिस्म नहीं हुआ करता। चलो ये मोहम्मद नूर का कोई जिस्म नहीं। चादर में आए तो अल्लाह ने बताया देखो हमने इन्हें बशर जरूर बना के भेजा, तुम्हारे पास पैकर बशरी में जरूर भेजा, लेकिन इन्हें अपना जैसा ना समझिए, इन्हें अपना जैसा ना समझिए। ये खाते तुम्हारी तरह हैं, पीते तुम्हारी तरह हैं, रहते तुम्हारी तरह हैं, चलते तुम्हारी तरह हैं, फिरते तुम्हारी तरह हैं, सोते तुम्हारी तरह हैं, जागते तुम्हारी तरह हैं, आते तुम्हारी तरह हैं, जाते तुम्हारी तरह हैं, सब कुछ तुम्हारी तरह करते हैं, लेकिन इन्हें अपना जैसा ना समझ लेना। देखो जब तीर मारोगे तो जख्म आएगा, तलवार मारोगे तो सर तन से जुदा होगा, खून निकलेगा, लेकिन कब तक? जब तक ये बशरियत का इजहार करते रहे, जब तक बशरियत का इजहार करते रहेंगे तो तीर भी निकल लगेगा, इजहार भी होगा, मुसीबत का इजहार भी होगा, लेकिन जब
बताएंगे कि हम बशर नहीं हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद। लोग नेज़ा पे तिलावत कुरान करके बताया कि देखो हमें अपना जैसा न समझो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोग नेज़ा पे तिलावत कुरान करके बता रहे थे और ये भी बताना चाहते थे कि देखो तुम कितना ही चाहो कि अहले बैत को कुरान से अलग कर दो, लेकिन कुरान अहले बैत से अलग नहीं। हाँ, सर तन में जुदाई तो कर सकते हो, लेकिन कुरान को अहले बैत से जुदा नहीं कर सकते। सर हुसैन तिलावत कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर उन जगहों पे तिलावत होती जहाँ तमाशाइयों का मजमा बहुत होता। इमाम इसलिए भी तिलावत करते थे ताकि तमाशाइयों की नजरें मेरी बहनों की तरफ से मेरे सर की तरफ आ जाए। अज़ादारों, ये जुटा हुआ काफिला जब कूफे में आया और कूफे में आने के बाद बाजार कूफा में ये काफिला रोक दिया। अज़ादारों, 1-2 घंटे काफिला नहीं रुका, 36 घंटे तक ऐसे कूफे के बाजार में खड़े रहे। जब कई घंटे गुजर गए तो शहजादी ज़ैनब ने फिज़ा से फरमाया, फिज़ा चांद शिब्र से मालूम कर हमारा काफिला दरबार में क्यों नहीं दाखिल होता। फिज़ा शिब्र के पास आए, शिब्र ने आते हुए देखा, अपना रुख मोड़ा। फिज़ा दूसरी तरफ गई, शिब्र ने फिर अपना रुख मोड़ लिया। जब कई मरतबा ऐसा हुआ तो फिज़ा को जलाल आ गया और जलाल के आलम में कहा, शिब्र अगर मेरी शहजादी ने ना भेजा होता तो कभी ना हो। शहजादी का नाम सुना, कहा बताओ तुम्हारी शहजादी ने क्यों भेजा। तो मेरी शहजादी ने कहा है कि हमारा काफिला दरबार में क्यों नहीं दाखिल होता। उस मलून ने फरमाया, उस मलून ने कहा, फिज़ा जाके अपनी शहजादी से कह देना कि दरबार की आईना बंदी हो रही, जब तक दरबार सजाया ना जाएगा उस वक्त तक काफिला दरबार में दाखिल ना होगा। अल्लाह अकबर, जानते हैं आईना बंदी क्या होती है। चारों तरफ शीशे लगा दिए जाते थे ताकि कैदी अपनी हालत को देख ले। अल्लाह अकबर, ये रसूल का घराना है। अगर फिज़ा ने आके खबर दी, शहजादी ने फरमाया, फिज़ा जाके शिब्र से कह दे कि अगर इसी रास्ते से ले जाना है तो कुछ चादरें दे, और अगर इस रास्ते से चादरें नहीं देना चाहता तो ऐसे रास्ते से लेके चल जहाँ तमाशाइयों का मजमा कम हो। अल्लाह अकबर, उस मलून ने ऐसा फिक्रा कहा कि अली की बेटी से बोलता है। उस मलून ने कहा, फिज़ा अपनी शहजादी से जाके कह देना कि हमको कूफे की शहजादी नहीं है, हमारी कैदी है, जैसे ले जाना चाहेंगे जाना पड़ेगा। अज़ादारों, इस फिक्रे का सुनना था, अली की बेटी को जलाल आ गया। अच्छा, मेरा अब्बास न रहा, मेरा अली अकबर न रहा, मेरा कासिम न रहा, मेरे ओनो मोहम्मद न रहे, तो अली की बेटी को मजबूर समझता है। ये कह के आवाज दी, रुकैया मेरे करीब आ जाओ, सकीना मेरे करीब आ जाओ, उम्मे कुलसूम मेरे करीब आ जाओ, उम्मे लैला मेरे करीब आ जाओ, उम्मे फरवा मेरे करीब आ जाओ, अम्मा फिज़ा मेरे करीब आ जाओ। मैं बदुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हूँ, तुम आमीन कहना। अल्लाहु अकबर। अभी ज़ैनब ने बदुआ के लिए हाथों को बुलंद किया था, ज़बान से कुछ ना कहा था, पीछे से जंजीर की झनकार की आवाज आई। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, बीमार इमाम, आंखों की हथकड़ी संभाले हुए, पैरों की बेड़ी संभाले हुए, गले का धारदार तो संभाले हुए आगे बढ़ रहा है। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को देखा, मेरे लाल क्या बात है। कुफी अम्मा जरा बाबा के सर को तो देखिए, अब तो सर हुसैन पे नजर गई। अज़ादारों, हुसैन की आंखों से आंसू जारी थे। ज़ैनब तरफ गई, हाथों को जोड़ा, मां जाए, क्या अब्बास याद आ गया, क्या अली अकबर याद आ गए, क्या कासिम याद आ गया। आवाज़ हुसैन आई, ए बहन मेरी मेहनतों को पामाल न करो, जिस तरह ले जाना चाहते हैं चली जाओ। इस फिक्रे का सुनना था। अज़ादारों, बदुआ के लिए उठे हुए हाथ नीचे आ गए। ए मेरे माँ जाए, अगर तेरी यही रिज़ा है तो ज़ैनब इसी हालत में शराबी के दरबार में जाने के लिए तैयार है। अजरुकुम अल्लाह, खुदा को किसी गम न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा के। अज़ादारों, 36 घंटे के बाद ये काफिला आगे बढ़ा। जैसे ही कूफे के दारुल अमारा पे पहुंचा,
जैसे ही कूफे के दारुल अमारा पे पहुंचा, बस कूफे के दारुल अमारा पे पहुंचना था कि सैयद सज्जाद ने किसी को सलाम किया। हमारे करबला का सलाम करना था, ज़ैनब तड़प गई, ए मेरे लाल का कोई चाहने वाला मिल गया, तुमने किसे सलाम किया? सैयद सज्जाद ने फरमाया कि अम्मा देखती नहीं, कूफे के दरवाजे पे चचा मुस्लिम का लाश लटका हुआ है। चचा मुस्लिम का लाश का लटका हुआ। अज़ादारों, मुस्लिम का नाम सुनना था, मुस्लिम का नाम सुनना था। अज़ादारों, ज़ौजे मुस्लिम आगे बढ़ गई। जानते हैं ज़ौजे मुस्लिम कौन है? ज़ौजे मुस्लिम मौला अब्बास की हकीकी बहन का नाम, हकीकी बहन का नाम। जब कूफे के रास्ते में मुस्लिम की शहादत की खबर मिली और ज़ौजे मुस्लिम ने अपने सुहाग का मातम करना शुरू किया था, तो मौला अब्बास अपनी बहन के करीब गए थे और बहन के करीब जाने के बाद शाने पे हाथ रख के एक फिक्र करता, बहन बहादुर भाइयों की बहनें, बहादुर भाइयों की बहनें इस तरह नहीं रोती। जरा कूफा तो आने दे, अगर कूफे की ईंट से ईंट न मिला दूं तो मुझे अब्बास न कहना। अज़ादारों, अब अब्बास की बहन कूफे के दारुल अमारा में खड़ी है। अपने शौहर के लाशे को देखो, एक फिक्रा का हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के एक फिक्रा का, ये मेरे सरकार, ये मेरे वालियों वाले, मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करती, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन हाँ एक सवाल जरूर करूँ, और वो सवाल ये है कि जब तुम कूफे में आए थे तो 2 बच्चों को साथ लेके आए, और जब मैं करबला में आई थी तो 2 बच्चों को साथ लेके आई थी। जिन बच्चों को करबला लाई थी उनके सर लेके आई हूँ, उनके सर लेके। ए मेरे सरताज, इतना बता दो मेरे उन बच्चों का क्या हुआ? अज़ादारों, कौन बताए कि फुरात के किनारे बच्चों को ज़बह कर दिया गया? अभी ज़ौजे मुस्लिम अभी तो अपने सुहाग से गुफ्तगू कर रही थी कि भैया का वो फिक्रा याद आया। ए बहन, बहादुर भाइयों की बहनें इस तरह